हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट डिटेक्टिव नॉवेल। आज हमारा टॉपिक है डिटेक्टिव नॉवेल, यानी जो नॉवेल जासूसी के ऊपर लिखे जाते हैं वो डिटेक्टिव नॉवेल कहलाते हैं। डिटेक्टिव नॉवेल इज नॉट कंसिडर्ड अ लिटरेरी वर्क, दो दे मे बी वेरी इंटरेस्टिंग। द डिटेक्टिव नॉवेल इज एन inferior form of art because it does not present a view of life which is considered is a distinctive features of all great artists. Generally, it is not valued more than a legal report. In newspapers, we read many items of news related to theft, robbery, murder, rape, and violence, and then we forget them. A highly creative and imaginative artist infuses his art with many pieces of information. A good novelist, whether he is dealing with the theme of love or crime, must maintain artistic development. Some detective novelists do not pay heed to these basic rules. This is why, in spite of being so popular, the detective novel has failed to attract critics' attention. Okay. The first detective novel came from the pen of William Godwin, and his novel was based on political justice. There was a time when William Godwin's book was regarded as the religious book or revolutionaries. The title of his book of things as the adventures of Williams. He wrote the book in 1794. It is the story of the investigation of a crime. ये जो स्टोरी है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम के ऊपर है. ओके. The criminal in the novel is Gerald, who is a wicked and uncontrolled landlord. He commits often and brutal murders. Another landlord, Falkland, kills Gerald. Caleb Williams suspects the murder, and like an expert detective, he discloses the mystery of the murder. Okay. ये जो है डिटेक्टिव नॉवल, ये जासूसी उपन्यास को साहित्यिक रचना नहीं समझा जाता है. यद्यपि अति रुचिपूर्ण हो सकता है. जासूसी उपन्यास कला का निम्न कार्य है, क्योंकि इसमें ये जासूसी उपन्यास रुचिपूर्ण हो सकता है, इंटरेस्टेड हो सकता है. ओके. ये किसी महान उपन्यासकार का विशिष्ट लक्षण या विशेषता होती है. इसको एक कानूनी रिपोर्ट से अधिक महत्व नहीं दिया जाता है. समाचार पत्र में हम चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार, हिंसा जैसे समाचार पढ़ते हैं और शीघ्र ही उनको भूल जाते हैं. एक उत्तम श्रेणी का सृजनात्मक तथा कल्पनाशील कलाकार अपनी कला में बहुत सी सूचनाओं का समावेश करता है. अच्छा उपन्यासकार चाहे वह प्रेम के विषय पर लिख रहा हो तो अपराध पर पृथकता बनाए रखता है. कुछ जासूसी उपन्यासकार इन आधारभूत नियमों की ओर ध्यान नहीं देते हैं. यही कारण है कि जासूसी उपन्यास इतना लोकप्रिय होने के बावजूद आलोचकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका है. ओके. इन हिज अर्ली वर्क्स, पोएम एंड अकाउंट ऑफ वाइसेस rampant in the society of his time. His tales of grotesque and arabesque attained great success. Then he brought out tales of mystery and imagination which has never been equaled in the history of weird fiction. His latter, The Goldbag, The Murders in the Rue Morgue, and The Mystery of Marie Caget are counted among the best detective stories. Persian police seek the help of a famous detective, August Dupin,
in finding out the letter which was stolen by a minister. Okay. The victim deceived a woman and stole the letter. Dunphy recovered the letter and lodged the complaint that the police only searched for the criminals on the spots where they might be hiding. The letter was found in an open card rack. Okay. Poe attributed his analytical mind to the pen, for Poe believed that the ingenious are always fanciful. Poe in his student life was much interested in mathematics. He was endowed with powers of reasoning and had great ability to apprehend general truth. British readers are accustomed to knowing these activities of the vast resources of Scotland Yard. There is no point in composing about the matter. There are readers who like a detective to have both intelligence and physical strength, but in most cases Dupin used only his mind. Charles Dickens never tried detailed detective stories. His only story related to murder is The Mystery of Edwin Drood. It had the symptoms of detective story, even that is not a complete detective story. देखिए, जो फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवेल लिखा गया वो विलियम गॉडविन ने लिखा और ये एक राजनीतिक न्याय पर आधारित था। एक समय था जब विलियम गॉडविन की पुस्तक को क्रांतिकारियों की धार्मिक पुस्तक समझा जाता था। इसमें एक दिखाए गए उपन्यास में एक अपराधी टायरल, जो कि एक दुष्ट तथा अनियंत्रित जमींदार था, बहुत ज़्यादा हत्याएं करता था। एक अन्य जमींदार फॉकलैंड उसकी हत्या कर देता है। केवल विलियम्स हत्या पर संदेह करता है तथा एक निपुण जासूस की भांति वह हत्या के रहस्य को उजागर कर देता है। उसकी आधुनिक रचनाओं में पूर्ण समय के समाज में व्याप्त बुराइयों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इन्होंने एक पर्शियन पैलेस एक प्रसिद्ध जासूस ऑगस्टिन डपिन की सहायता एक पत्र को खोज निकालने में मिली थी, जिसको एक मंत्री ने चुरा लिया था। एक दुष्ट व्यक्ति ने एक महिला को धोखा दिया तथा पत्र चुरा लिया। ड्यूपिन ने पत्र प्राप्त कर लिया, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस अपराधियों को उनके छिपने के स्थान पर ही खोजती है। पत्र एक खुली हुई रैक में मिला था। इस तरीके से पोन ने अपना विश्लेषणात्मक गुण अपना चरित्र ड्यूपिन को प्रदान किया। उसका विश्वास था कि बुद्धिमान व्यक्ति सदैव क्रियाशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पना विश्लेषण से भिन्न नहीं होते। अपने विद्यार्थी काल में पो की गणित में अधिक रुचि थी। उसे ईश्वर की खोज से कुशाग्र बुद्धि प्राप्त हुई तथा उसने सामान्य सत्य को समझने की महान योग्यता भी थी। The claim of Wilkie Collins on the detective stories is stronger than anyone else. He was an experienced detective story writer. His technique is make them laugh and let them wait. His two famous novels, Moonstone and The Woman in White, are regarded as the classics of this age. Moonstone is a very big diamond studded in the forehead of an idol of Indian god. By chance, an Englishman, Herne Castle, gets hold of the diamond. It hurts the religious feelings of the Brahmins and they are determined to get it back. Herne Castle hands it over to Miss Verinder, but surprisingly, it disappears. Mystery. Three jugglers who wander have and there are suspected to have a hand in the theft of the diamond. Miss Verinder had a lover, Franklin Black, who is addicted to opium. Under the effect of opium, he snatched the diamond from his beloved Miss Verinder. Black has a rival in love, Godfrey Applewhite, who takes it away. देखिए इसमें क्या है, एक जासूसी कहानी है विल्की कॉलिन की, जो एक बहुत ही अनुभवी एक्सपीरियंस जासूसी कहानी लेखक था। उसकी एक तकनीक थी कि उनको हंसाओ, उनको प्रतीक्षा कराओ। उसके दो प्रसिद्ध उपन्यास भी थे, मूनस्टोन और वुमेन इन वाइट। ये दोनों उपन्यास इसके क्लासिक समझे जाते हैं। मूनस्टोन एक भारतीय देवता की मूर्ति में जड़ा हुआ हीरा था।
संयोग से एक अंग्रेज हैन कास्टल इसे अपने कब्जे में ले लेता है। इससे ब्राह्मणों की जो धार्मिक भावनाएं होती हैं वो आहत होती हैं और वो पुनः उसे प्राप्त करने के लिए संकल्प करते हैं। हैन कास्टल इस हीरे को मिस बेरेंडर को दे देता है और आश्चर्यजनक रूप से रहस्यमय तरीके से वो गायब भी हो जाता है। 3 मदारी जो इधर उधर घूम रहे होते हैं वो हीरे को चुराए जाने का संदेह किया जाता है उन पर। मिस बेरेंडर का एक प्रेमी है फ्रैंकलिन ब्लैक, जो अफीम खाने का बहुत ज़्यादा आदी है। अफीम के नशे में वह हीरे को अपनी प्रेमिका से छीन लेता है। प्रेम में ब्लैक एक प्रतिद्वंदी गोडफ्रे एंड एवले वाइट है जो उसको कहीं दूर ले जाता है। घुमक्कड़ तीनों मदारी उसकी हत्या कर देते हैं और हीरे को अपने नियंत्रण में लेते हैं। प्रथम अंग्रेज जासूस सर्जेंट कफ इस केस के रहस्य को सुलझाने में अपनी संपूर्ण योग्यता तथा कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करता है। एक अन्य प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास लेखक डोरोथी सायर्स है। उसने बहुत सी जासूसी कहानियां लिखी हैं। उसने जासूस लॉर्ड पीटर विम्से के चरित्र का निर्माण किया था, जो किसी भी संकेत के आधार पर अपराध को खोज निकालता था। अपराधों को खोज निकालने के तरीके उसकी साहित्य में भी रुचि थी। वह इस बात को दर्शाता है कि उसके उपन्यासों में गंभीरता भी है और एक स्पष्ट धार्मिक अपील भी है। डोरोथी हत्या को अपराध की दृष्टि से न देखकर नैतिक पाप समझती है। उसके सर्वोत्तम उपन्यासों के नाम है 9 टेलर्स, गॉडी नाइट, मर्डर मस्ट एडवर्टाइज। इन उपन्यासों में जासूसी तत्व पृष्ठभूमि में चला गया है। देखिए, पाठक का मनोरंजन करने का अतिरिक्त जासूसी उपन्यास पाठकों को एक काल्पनिक संसार में पलायन करने का अवसर भी देता है। ओके, जो दिन प्रतिदिन की नीरसता तथा वास्तविक झगड़ों को दूर करता है। ये सस्पेंस तथा उत्सुकता जासूसी उपन्यास की मुख्य विशेषता है तथा जासूसी उपन्यास आरंभ में अंत तक सस्पेंस और एक्साइटमेंट भी बनाए रखता है।